Assalamu alaikum. I'm Fahim from PMS School System. Today I welcome you all in this grammar session, and the topic we are going to discuss is verb. So first we shall discuss what is verb. We have three definitions. We shall discuss one by one. A verb is a word used for saying something about some person or thing. It means we shall discuss some action, understand, or being of some person or thing. Number next, a verb is a word that tells something about a person or thing. That what a person or thing is done or doing something. Number next, a verb is a word that denotes being, having, or doing something. Let's understand what is meant by being, having, or doing. A verb may tell us first what a person or thing is. Being means is. Mr. John is teacher. The dog is brown. His shirt is white. Having means to have something, what a person or thing have. Sheila has a pet. A chair has four legs. Doing means action, what a person or thing does. Latif kicks the ball. The clock strikes 10. Kinds of verbs. Verbs are classified in different ways. These are the kinds of verbs: auxiliary verb, principal verb, modal auxiliary, transitive, intransitive verb, regular verb, irregular verb, finite and infinite verb. Auxiliary and principal verb, which is some of the time auxiliary verb does the function of man verb. The verbs which are used independently without help from other verbs are called principal और man verb. देखिए यहाँ बात की जा रही है जब helping verb जो है independently यूज किया जाता है और उसके उस सेंटेंस में man verb ना हो तो वो helping verb जो है man verb कंसिडर किया जाता है या principal verb. Number next, an auxiliary verb जिस तरह के she is a teacher, I have an umbrella, she does his work perfectly, she will to have a prize. अब इन तमाम में जो है बेटा मैन वर्ब नहीं है, तो इसलिए जो है ये जितने अंडरलाइन रेड वर्ब्स हैं ये जो है प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहे हैं. An auxiliary verb is one which helps a principal verb to form a tense or mood or voice. ठीक है ना. ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मैन वर्ब को की हेल्प करता है सेंटेंस की कंप्लीशन में, ठीक है. जिस तरह की शी इज राइटिंग अ लेटर, इस जो है वो हेल्प कर रहा है किसकी, मैन वर्ब राइटिंग की सेंटेंस की कंप्लीशन में, ठीक है. आई हैव कम टू स्कूल, हैव इज हेल्पिंग द वर्ब कम, ठीक है. इसी तरह डज जो है वो गो के साथ लगा है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है. तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज की जा रही हैं जो हेल्प कर रही हैं मैन वर्ब की. These are the primary auxiliaries or helping verbs, and modal auxiliary you can see can, could, shall, should, will, would, may, might, must, need, dare, etc. are the modal auxiliaries. और प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एटसेट्रा. ठीक है. ये जो 10 एग्जांपल्स दी गई हैं आप इसको देख सकते हैं खुद भी. आई एम डूइंग द सम, यहाँ जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं. द किटन इज क्राइंग, ही वाज स्लीपिंग एटसेट्रा. यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. आइए पढ़ते हैं व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. Modal auxiliaries are those helping verbs which helps to express the mode and or manner in which the action is done. Modal auxiliary हमें बताते हैं कि कैसे कोई एक्शन जो है वो हुआ है, ठीक है. इसमें जो है नंबर फर्स्ट में जो है हमें बताया कि they do not have s form, ing form, ed form. जिस तरह के रेगुलर इरेगुलर होते हैं इसमें जो है रेगुलर इरेगुलर की तरह कोई बात नहीं. एस और एस ing जिस तरह जेरंड में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से जो है बनते हैं रेगुलर फॉर्म. तो
तो इस तरह इसमें कुछ भी नहीं होता। नंबर नेक्स्ट जो है कि मॉडल्स टेक्स ओनली बेस फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स आफ्टर देम, ठीक है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट लगता है। जिस तरह के आई कैन जो है आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके पास जो है उसके बाद डू बेस फॉर्म यूज हुआ है। आई कैन डू द वर्क अलोन, ही मे नॉट कम हियर टुडे, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल, मस्ट जो है उसके बाद भी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। नंबर थर्ड जो है मॉडल मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, वो जो है मेन वर्ब की मीनिंग को जो है मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। These are the modal verbs and its functions। ये मॉडल वर्ब्स हैं, उनकी यूसेजेस जो हैं आपको बताए गए हैं। विल is used for asking will you go to school, would for requesting would you give me a table tennis ball, shall is used for asking shall I do the work, should is used for suggestion you should work hard, can is used for ability he can drive a car, could is used for ability or requesting to someone else, he could do the sum, could you help me to do the sum, may is used for possibility, he may come here today, permission and prayer, may I come in, may you live long, might is used for possibility or suggestion, his statement might be true, you might go to Italy for training, you must certainty or obligation, yakini या जरूरी, it must be good, you must not do this, you must obey your teachers, obligations के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। फराइज के लिए mustn't, prohibition, ठीक है, you must not run in the sun, मना करने के लिए यूज किया जाता है, नीड नेसेसिटी के लिए, he need not to go there, ठीक है, जरूरत के लिए यूज किया जाता है नीड। नेक्स्ट काइंड इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। लेट्स रीड the definition। when an action passes over from subject to an object is called transitive verb, it takes an object, ठीक है, इसमें जो है एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो पास होता है। जिस तरह के एग्जांपल्स में दी गई हैं, दिया गया ही इज ईटिंग राइस, तो ईटिंग जो है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, तो एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास होता है, ठीक है। शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, तो व्हाट इज डूइंग बाय शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अब जो है एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है, और लुक एट इन ऑल दीज एग्जांपल्स यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर एक्शन किया जाता है या काम किया जाता है, ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट, व्हेन एन एक्शन डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, बल्कि वर्ब के बारे में जो है हमें फर्दर बताया जाता है, ठीक है, मॉडिफाई किया जाता है उसे, ठीक है। जब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे एक्शन को जो है क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव, इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह के द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, द बॉय इज लाफिंग, द लायन इज रोरिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, ठीक है, द ओल्ड मैन इज कफिंग। तो इन ऑल इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा जो है एक्शन जो है वो स्टॉप्स हो जाता है, स्टॉप। एक्शन के बारे में फर्दर आपके पास इसके बारे में इसके बाद एडवर्ब यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। फाइनाइट एंड अनफाइनाइट। बेटा फाइनाइट, a finite verb is limited by person and number of the subject and change its forms according to the tense, और इसकी फॉर्म जो है टेंस के मुताबिक चेंज होती है। अनफाइनाइट वर्ब is not limited by person and number as a verb that has a subject and is therefore called the verb infinite or infinite or simply the infinitive। अपने माइंड में एक बात ये रखिएगा कि फाइनाइट वर्ब में जो है क्या होता है, सब्जेक्ट, देखिए
वर्ब जो है लिमिटेड होता है सब्जेक्ट के साथ, जिस तरह कि फातिमा गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर हम फातिमा की जगह प्लूरल पुट करेंगे तो दे गो टू हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें इनफाइनाइट वर्ब में फातिमा डज नॉट लाइक टू गो, डज नॉट लाइक टू गो, ठीक है। इसमें जो है इनफाइनाइट में टू गो जो होता है इन्फिनेटिव, तो टू गो से पहले अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन इस पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो हमेशा जो है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा। जिस तरह अगले एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, द मैंगोज आर स्वीट टू टेस्ट, दे हैड 3 मीटिंग्स टू अटेंड, द boot is too heavy for him to walk, patriotism is the way to save Pakistan। बेटा इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, आपने हमेशा जे टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना है। लेकिन फाइनाइट वर्ब में इस तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में भी चेंजेस आते हैं। जिस तरह के फातिमा गोज टू स्कूल, उसके साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ईएस हमने ऐड किया। लेकिन सेंटेंस नंबर सेकंड में देखें, द मैंगोज, अब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है हमने जस्ट टेस्ट पुट किया, ना तो हमने एडिशन एस और ईएस पुट किया, ठीक है। होप यू वुड अंडरस्टैंड। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, थोड़ा ये और भी आसान है बेटा। दोज वर्ड्स इन विच वी ऐड डी और ईडी टू द वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सेव, सेव्ड, सेव्ड, हेल्प, 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 ठीक है। जब हम वर्ब के आखिर में डी और ईडी ऐड करें और उसके से जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्ट हो, तो इस तरह के फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। दोज वर्ब्स विच don't follow the typical pattern, they form their past and past participle without adding g or ed are called irregular verbs, ठीक है। वो वर्ब जिसके जो है आखिर में जो है क्या होता है, जिसके आखिर में डी और ईडी ऐड नहीं होता, उसे जो है इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है, ठीक है बेटा। जिस तरह के हमने आपसे डी और ईडी ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। और इस तरह के वर्ब्स कैसे होते हैं, जिस तरह के गो, वेंट, गॉन, जिसके आखिर में जो है ईडी लगता नहीं है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गो के बाद वेंट अलग है, ठीक है, गॉन समथिंग है, ठीक है, उसके भी आखिर में ईडी ऐड नहीं हुआ। तो इस तरह की फॉर्म्स ऑफ वर्ब को इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहा जाता है। Let's move towards the article. Beta, we have 3 articles A and D. अच्छा, articles are those words which are used before nouns, they modify a noun, ठीक है। 3 articles हैं A and D जो noun को modify करते हैं। Types of article, definite article और indefinite article। We have one definite article the और A and 2 indefinite articles हैं। What are the functions of definite article? To specify something, ठीक है ना, टू स्पेसिफाई समथिंग। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो जनरलाइज समथिंग। जिस तरह के लुक एट दीज आर द ग्रुप ऑफ एप्पल्स, इफ आई से दैट आई वांट टू ईट द एप्पल, ठीक है, आई वांट टू ईट द एप्पल विच इज एट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। यानी कि मैं फर्स्ट वन अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि मैं पहला एप्पल खाना चाहता हूँ, इस मीन कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो है पहला वाला सेब खाना चाहता हूँ, तो फिर जो है मैं डेफिनेट आर्टिकल पुट करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वांट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल, ठीक है, मैं इन ग्रुप ऑफ एप्पल में से एक सेब खाना चाहता हूँ, तो मैं जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं कह रहा हूँ इनमें से एक खा रहा हूँ। मीन्स मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को जनरलाइज करते हैं तो आप ए और एन पुट करेंगे, ठीक है ना बेटा। और अगर हम आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। अब कब और कैसे लगाने हैं? वी हैव 26 लेटर्स, 21 आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स यू विल हैव टू पुट ए, ठीक है। 5 वाउल्स है बेटा। सिंगुलर, अब देखो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, जो सिंगुलर के साथ जो है आपने ए लगाना है और
वाउल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू जो है, ए, ई, आई, ओ, यू आपके पास जो है वो वाउल्स हैं, ठीक है। तो वाउल साउंड से जो है पहले आपने जो है एन पुट कर देना है, ठीक है। वाउल साउंड एन, ठीक है। एनंट, एनेंट, एनेमी, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर। Consonant sound a boy, a woman, a horse, a book, a European, a university, 1 rupee note, ठीक है। बच्चे आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमने ए पुट किया और वाउल साउंड से पहले हमने एन पुट किया। थैंक यू, होप यू वुड अंडरस्टैंड।